Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. हमारी क्लास 9th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स और आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन below 4 types of quadrilaterals. In previous lectures, we discussed the properties, characteristics of parallelogram, rectangle, square, and rhombus. These are the first 4 types of quadrilaterals. Still, we have 2 types of quadrilaterals left, that is trapezium and kite. We will discuss about them later in the next videos. And today we are going to compare these 4 types of quadrilaterals. We are going to compare the properties, characteristics of these 4 types of quadrilaterals, that is parallelogram, rectangle, square, rhombus. When we compare the properties, characteristics of these 4 types of quadrilaterals, actually we are trying to find the similarities and differences between them. So let us see what are the similarities and what are the differences between these 4 types of quadrilaterals on the basis of properties, on the basis of characteristics, features. As we know, the parallelogram, its first property is, parallelogram's first property is opposite sides are equal. Opposite sides are equal as well as parallel. First, we will see the first property of parallelogram, that is opposite sides are parallel. Okay, that it is the first property, it is the first characteristic feature of parallelogram, that opposite sides are parallel. Now, does this apply in rectangle as well? Yes, definitely, because rectangle is also a parallelogram. So whatever the property of parallelogram is, that will apply on the rectangle as well. So same, yes, opposite sides are parallel, yes. In rectangle, opposite sides are parallel. And in square as well, opposite sides are parallel, definitely. And in rhombus, opposite sides are parallel. So this property of parallelogram, that is opposite sides are parallel, it also applies in rectangle, it also applies in square, it also applies in rhombus. So our first property of parallelogram is opposite sides are parallel in rectangle as well, opposite sides are parallel in square, opposite sides are parallel in rhombus, opposite sides are parallel. Then we have the second property of parallelogram, that opposite sides are equal. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो क्या रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? यस, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर में भी क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हाँ, इनफैक्ट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं। क्या रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? बिल्कुल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ तक कि सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल।
all sides are equal. In rhombus, all sides are equal. In square, all sides are equal. In rectangle, opposite sides are equal. In parallelogram, opposite sides are equal. Then we have the third property of parallelogram, that is opposite angles are equal. Opposite angles are equal. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं. तो क्या रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं? बिल्कुल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. या हम ऐसे कहेंगे कि ऑल एंगल्स आर इक्वल. ऑल एंगल्स आर इक्वल. सारे एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है. तो जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इनफैक्ट सारे एंगल्स 90 होंगे. तो हम कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब ये भी हुआ कि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम की जो तीसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो इस पर भी अप्लाई होती है, मगर सिर्फ अपोजिट एंगल्स ही बराबर नहीं, सारे एंगल आपस में बराबर है. ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो क्या स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है? यस, स्क्वायर में भी यही है. स्क्वायर में सिर्फ अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं, बल्कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. ऑल एंगल्स आर इक्वल. ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो रेक्टेंगल में भी सारे एंगल बराबर 90 और स्क्वायर में भी सारे एंगल बराबर 90. और रोम्बस में क्या है? रोम्बस में सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जैसे कि हमने देखा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. तो स्टिक का मतलब हुआ जो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो रोम्बस में भी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे. और जो पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स bisect opposite angles. Diagonals bisect opposite angles. डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल्स को. तो इसके लिए आपको अपोजिट एंगल्स देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो भी देखना होगा. तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल्स को. तो क्या रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, अपोजिट एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं? डेफिनेटली यस. क्या स्क्वायर में भी डायगोनल अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है? यस. क्या रोम्बस में भी डायगोनल अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है? यस. सो इट अप्लाइज टू ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ quadrilaterals दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स. फिर हम पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे. पांचवी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है कि वो ये है कि डायगोनल्स में और may not be equal. पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है. अगर ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल्स बराबर होंगे. अगर ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम नहीं होगा तो इसमें डायगोनल्स डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पे इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं पैरेललोग्राम में. सो डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल. और रेक्टेंगल में हम क्या देखते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स इक्वल होते हैं. डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ या डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल. स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में भी यही बात है कि डायगोनल्स आर इक्वल. Diagonals are
इक्वल। तो स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं, मगर पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यही अप्लाई होगा रोम्बस में भी कि डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल, डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक चीज़ करें, यहाँ पे हमें टिक लगाना होगा, यानी जो पैरेललोग्राम में अप्लाई हो रहा है वो रोम्बस में भी अप्लाई होगा डायगोनल्स के हिसाब से। डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल, यहाँ पर भी यही अप्लाई होगा कि डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल। तो ये तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो दो हिस्से करते हैं। तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल में क्या है, ये इसमें भी यही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल हम यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे अप्लाई होता है पैरेललोग्राम में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और हम स्क्वायर में क्या देखते हैं, बिल्कुल डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मगर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट right angles। और रोम्बस में क्या है, अब रोम्बस में भी यही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, ये तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी कंपैरिजन के हिसाब से। फिर हमारी सातवीं प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की, कि जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम के दो ट्रायंगल्स बनाता है और वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर आपको याद होगा सेवंथ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम, each diagonal of a parallelogram, each diagonal of a parallelogram, each diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, या each diagonal divides the parallelogram, each diagonal, यहाँ पे हम लिख सकते हैं divides the parallelogram, each diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles। तो हर एक डायगोनल जो पैरेललोग्राम का है वो इसको डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो बिल्कुल ये रेक्टेंगल पे भी अप्लाई होता है। जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो भी रेक्टेंगल के दो ट्रायंगल्स बनाता है और वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरीके से स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी स्क्वायर के दो ट्रायंगल्स बनाते हैं मगर वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो भी रोम्बस के दो ट्रायंगल्स बनाता है और वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में congruent होते हैं। So this was the comparison, this were the similarities, these were the similarities and differences between the four types of quadrilaterals, that is parallelogram, rectangle, square and rhombus. So if we see the similarities, yes, opposite sides are parallel in case of parallelogram, rectangle, square and rhombus. Similarly, we have diagonals bisect opposite angles, diagonals
अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, वो रेक्टेंगल में भी है, वो स्क्वायर में भी है और वो रोम्बस में भी है। तो एक और सिमिलरिटी है, वो ये है कि ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो वही यहाँ पे रेक्टेंगल में भी अप्लाई होगा, स्क्वायर में भी अप्लाई होगा और रोम्बस में भी अप्लाई होगा। अब अगर हम डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मगर स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स आर इक्वल और रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसी तरीके से डिफरेंसेस हम देखेंगे। डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से रोम्बस में भी डायगोनल्स बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे पैरेललोग्राम में डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और स्क्वायर और रोम्बस में क्या है कि डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मगर वहाँ पे राइट एंगल भी बनते हैं, वहाँ पे राइट एंगल भी बनते हैं। तो ये तो थी कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस। आप अगर इसको गौर से देखेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, फिर इसको थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे 2-3 बार, तो इंशाल्लाह आपको इन चारों में जो सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, दैट विल बी पार्ट 10 in fact, that will be about the trapezium and the kite, properties and characteristics of trapezium and kite. So this was our lecture number 9. This was our lecture number 9, part 9.